Tradition 9. A as such ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. When Tradition 9 was first written, it said that Alcoholics Anonymous needs the least possible organization. In years since then, we have changed our minds about that. Today, we are able to say with assurance that Alcoholics Anonymous, AA as a whole, should never be organized at all. Then, in seeming contradiction, we proceed to create special service boards and committees which in themselves are organized. How, then, can we have an unorganized movement which can and does create a service organization for itself? Scanning this puzzler, people say, what do you mean? No organization? Well, let's see. Did anyone ever hear of a nation, a church, a political party, even a benevolent association that had no membership rules? Did anyone ever hear of a society which couldn't somehow discipline its members and enforce obedience to necessary rules and regulations? Doesn't nearly every society on earth give authority to some of its members to impose obedience upon the rest and to punish or expel offenders? Therefore, every nation, in fact, every form of a society, has to be a government administered by human beings. Power to direct or govern is the essence of organization everywhere. Yet, Alcoholics Anonymous is an exception. It does not conform to this pattern. Neither its General Service Conference, its Foundation Board, nor the humblest group committee can issue a single directive to an A member and make it stick, let alone mete out any punishment. We have tried it lots of times, but utter failure is always the result. Groups have tried to expel members, but the banished have come back to sit in the meeting place saying, this is life for us. You can't keep us out. Committees have instructed many an AA to stop working on a chronic backslider, only to be told, how do I do my 12-step work is my business. Who are you to judge? This doesn't mean an AA won't take advice or suggestions from more experienced members, but he surely won't take orders. Who is more unpopular than the old-time AA, full of wisdom, who moves to another area and tries to tell the group there how to run its business? He and all like him view the alarm for the good of AA, meet the most stubborn resistance, or worse still, laughter. Shall I continue reading, or Lucky जी? हाँ, ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है, ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज ट्रेडिशन पे, जो कि हम इसको मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशन कहते हैं, एक संगठन के रूप में कभी भी संगठित नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, लेकिन हम सेवा बोर्ड या समितियां बना सकते हैं जो उन सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो जिन्हें वे सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर, क्योंकि हम सारे ट्रेडिशंस देखेंगे तो हर ट्रेडिशंस का अपना एक मुद्दा है, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कैसे चलेगी उस पे आधारित होता है ये वाला नवा ट्रेडिशन। तो इसमें बिल कहता है कि जब परंपरा नौ पहली बार लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को कम से कम संगठन की आवश्यकता है। सालों बाद हमने इस बारे में अपने विचार को बदल दिया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस संपूर्ण AA को कभी भी संगठित नहीं होना चाहिए। फिर भी एक स्पष्ट विरोधाभास जैसे दिखते हुए हम विशेष सोवा बोर्ड और समितियां बनाते हैं जो स्वयं संगठित होती है। तो फिर ये कैसे संभव है
कि हमारे पास एक असंगठित आंदोलन हो या मूवमेंट हो जो अपने एक आता है और चलता है। इस पहेली को देखते हुए लोग पूछते हैं क्या है कि क्या किसी ने कभी किसी राष्ट्र, किसी चर्च या राजनीतिक दल या किसी परोपकारी संस्था के बारे में सुना है जिसके पास सदस्यता के नियम न हो? क्या किसी ने कभी ऐसे समाज के बारे में सुना है जो किसी तरह अपने सदस्यों को अनुशासित न कर सके और आवश्यक नियमों का पालन ना करवा सके? क्या धरती पर लगभग हर समाज अपने कुछ सदस्यों को अधिकार नहीं देता कि वे बाकी सदस्यों के नियमों का पालन कराए और उल्लंघन करने वाले को दंडित या निष्कासित करे? इसलिए हर राष्ट्र, वास्तव में हर प्रकार का समाज, मनुष्यों द्वारा प्रत्येक सरकार दिशा या शासन करना हर जगह संगठन का मूल तत्व है। फिर भी बिल यहाँ कहता है कि ये हमें पहले पैराग्राफ में ये समझाते हुए कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड पे हम किसी सब यहाँ पहली बात जहाँ नियम ही नहीं हो, जहाँ संगठन ही नहीं हो, फिर भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक अपवाद है। ये उस सामान्य पैटर्न का पालन नहीं करता। न तो इसकी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, न इसका फाउंडेशन बोर्ड, अब ये फाउंडेशन बोर्ड बदल के जनरल सर्विस ऑफिस है, और न ही किसी छोटे से समूह की समिति किसी एक सदस्य को एक भी आदेश जारी कर सकती है और उसे लागू करवा सकती है। दंड देना तो दूर की बात है। हमने ये कई बार आजमाया है, लेकिन परिणाम हमेशा पूरी तरह असफल रहा है। कोशिश की, लेकिन निकाले गए सदस्य वापस आकर मीटिंग में बैठ गए और बोलने लगे ये हमारी जिंदगी है, आप बाहर नहीं कर सकते। समितियों ने कई सदस्यों को यह भी कहा कि इसी पुराने स्लिप होते रहने वाले शराबी पर काम, लेकिन उन्हें जवाब मिला मैं आरवा कदम कैसे करूं। ये मतलब ये नहीं है कि कोई एक सदस्य अनुभवी सदस्य की सलाह या सुझाव नहीं, लेकिन वो आदेश नहीं ले। उस पुराने ए से अधिक लोकप्रिय कौन है जो बड़ी बुद्धिमानी से भरा हुआ किसी नए इलाके में जाता है? उस पुराने ए मेंबर से अधिक अलोकप्रिय कौन है जो बड़ी बुद्धिमानी से भरा हुआ किसी नए इलाके में जाता है और वहां के समूह को ये सिखाने लगता है कि उन्हें अपना काम कैसे चलाना चाहिए? ऐसे सभी लोग जो एक ही भलाई के लिए चिंता जताते हुए दूसरों को चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा विरोध का सामना करते हैं, और उससे भी बुरा लोग उन पर हंसने लग पड़ते हैं। तो बिल ने ये पहले दो पैरास में इस ट्रेडिशन को समझाते हुए एक बाहर की समाज, सरकार, राजनीतिक दल के साथ तुलना करते हुए जहां संगठित एक संगठन होता है, जहां नियम होती है, जहां पे सभासदों को नियम में लाने का काम किया जा सकता है, वो तुलनात्मक एक कल्पना देता है हमें, और हम ये समझते हैं कि बिना संगठन के भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक उपवाद के रूप में चल रही है। फिर अगले पैरा में वो पुराने सभासदों का भी जिक्र करता है। यहाँ एक ही जो काम है, जैसे कि 12 स्टेपिंग का काम है, वो भी कैसे करना है उसके बारे में अभी अगर कोई किसी को सिखाएगा तो वो भी कई बार संभव नहीं होता है। इसमें बिल ने ये भी क्लियर किया, हालांकि पुराने अनुभवी सदस्यों की बातों को लोग ऐसे दुत्कारते नहीं है, लेकिन आदेश नहीं पालन करते हैं। मैं मीटिंग में हूँ चंदू। यस अच्छा, लकी। ओके। लकी जी, तो
हाय ज्यादा पुष्पम। आवाज नहीं आ रहा है चंदू मेरे को। आपका नहीं, आपका शायद या तो आपका सिग्नल खराब है या मेरा सिग्नल खराब है, आई एम नॉट श्योर। ओके, थैंक यू लकी। मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है सबको? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये तो चलो हम लोग ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो पहले देखते हैं। पहले ओके, each AA group needs the least possible organization. Rotating leadership is the best. The small group may elect its secretary, the large group its rotating committee, and the groups of a large metropolitan area their central or intergroup committee, which often employs a full-time secretary. The trustees of the General Service Board are, in effect, our AA General Service Committee. They are the custodians of our AA tradition and the receivers of voluntary AA contributions by which we maintain our AA General Service Office at New York. They are authorized by the groups to handle our overall public relations, and they guarantee the integrity of our principal newspaper, the AA Grapevine. All such representatives are to be guided in the spirit of service. For true leaders in AA are but trusted and experienced servants of the whole. They derive no real authority from their titles. They do not govern. Universal respect is the key to their usefulness. तो चलो भाइयों, ये ट्रेडिशन को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लंबा सा ट्रेडिशन है। अगर इसको थोड़ा हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो संक्षिप्त रूप है इसका, वो कहता है AA as such ought never be organized, यानी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है, इसे हम लोग किसी भी तरीके से हायरार्की में, यानी कोई ऊपर कोई नीचे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये कि बिल्डब्ल्यू कहता है कि जब भी एक कंपनी होती है और ये कंपनी में एक आध मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें शायद एक मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, वो मार्केटिंग डायरेक्टर के नीचे होगा शायद जनरल मैनेजर मार्केटिंग, उसके नीचे होंगे रीजनल मैनेजर्स अलग अलग रीजन्स के लिए, और फिर हर एक छोटे छोटे एरिया के लिए एरिया मैनेजर्स होंगे और उसके नीचे सेल्समैन होंगे। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर कहेगा वही नियम, जो जनरल मैनेजर कहेगा वो उसके नीचे वाले सेल्स मैनेजर को सुनना ये कंपलसरी है, नहीं तो नौकरी खोनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल इक्वेशन होता है कैरेट और स्टिक, या तो टारगेट पूरा करो तो आपको बख्शिश मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, या तो आपको लाठी पड़ेगी, आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है हर एक कंपनी में, हर एक गवर्निंग जो कोई भी संगठन हो, उसका जो एक गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार अधिकार पर आधारित ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर ना हो, ये इस ट्रेडिशन का एक मूलभूत रूप है। यहाँ पर जो पहला लॉन्ग फॉर्म में से जो हम लोग देखते हैं कि ईच AA ग्रुप नीड्स द लीस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक AA का समूह चलता है तो नॉर्मली वहां पर एक सेक्रेटरी होता है जो कि मीटिंग कंडक्ट करता है, या कुछ ग्रुपों में चेयरमैन होता है, वो मीटिंग कंडक्ट करता है,
और फिर कोई लिटरेचर सेक्रेटरी होता है, वो लिटरेचर वगैरह उपलब्धि करा के देता है। कोई एक आधा आईजीआर होता है, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो ग्रुप की हालचाल अंतर समूह तक पहुंचाता है। तो ऐसे 2-3 पदाधिकारी छोड़ दिए तो वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। और जो स्ट्रक्चर होता है वो भी परमानेंट नहीं होता। तो दूसरा वाक्य कहता है रोटेटिंग लीडरशिप इज द बेस्ट, यानी कि सेक्रेटरी भी बना तो वो साल भर के लिए ही होता है, आईजीआर भी बना तो वो 2 साल के लिए ही होता है। यानी कोई भी पोजीशन के लिए आपको अगर चुना जाए, इलेक्ट किया जाए, तो वो पोजीशन के लिए भी आप कुछ ही समय के लिए होते हो। ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने कुर्सी पकड़ ली, जगह पकड़ ली तो आप अभी छोड़ोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रोटेटिंग मेंबर लीडरशिप, यानी कि आज मुझे अधिकार मिलेगा तो कल लकी को मिलेगा तो परसों चंदू को मिलेगा। हर जो नया आया हुआ सदस्य है उसे भी एक ना एक दिन वो पद पे सेवा देने का मौका जरूर मिलेगा। तो वहां पर आगे लिखते हैं द स्मॉल ग्रुप में इलेक्टेड सेक्रेटरी, छोटा जो समूह है वो अपने लिए एक आधा सेक्रेटरी इलेक्ट कर लेगा। जो बड़ा ग्रुप है वो अपने लिए रोटेटिंग कमेटी बनाएगा। यानी रोटेटिंग कमेटी का मतलब क्या है? आप लोगों ने अगर ए ग्रुप नाम का पैम्पलेट अगर पढ़ा होगा तो ये कमेटी, वो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, ये बड़े ग्रुप्स में कुछ अधिकारी जो है वो अधिकारी बनाए जाते हैं। अलग अलग रोल्स जो होते हैं, अलग अलग जो कमिटीज होते हैं, वो कमिटीज का एक एक चेयरपर्सन दिया जाता है। तो जो समूह अपने एरिया में बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं, जिनकी सभासद संख्या ज्यादा है, इनके लिए वो एक स्ट्रक्चर बताया है जिसमें कि कुछ कमिटीज ग्रुप लेवल पे भी बनती है और वो कमिटी का एक एक चेयरपर्सन होता है। और वो जो है ये कमिटी भी बड़े ग्रुप्स बना सकते हैं। एंड द ग्रुप्स ऑफ अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया, देयर सेंट्रल और इंटर ग्रुप कमिटी। तो जब भी अभी हमारा ठाणे एरिया है जहां पर 10 समूह कार्यरत है, तो जब भी 10, 12, 15 समूह एक जगह पर कार्यरत होते हैं तो वो सभी समूहों के हित में जो सेवा दे सके, ऐसे एक आधा सेंट्रल ऑफिस या जिसे हम लोग भारत में इंटर ग्रुप के नाम से जानते हैं, ऐसी कमेटी बना देते हैं। तो ये जो कमेटी है यहाँ पर लिखा है विच ऑफन एम्प्लॉयज अ फुल टाइम सेक्रेटरी। हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी का जो पद है ये भी वॉलंटरी होता है, लेकिन अगर आप चाहो, या कुछ ऐसे अमेरिका की शुरुआत के समूह में जो फुल टाइम सेक्रेटरी, यानी जो स्पेशल उसको कॉम्पेंसेशन के साथ में भी रखने की सुविधा दी गई थी जब ये क्लब हाउसेस में चलते थे, जब हमारी समूह क्लब हाउसेस में चलते थे। लेकिन अभी हम लोग उस तरफ नहीं जाते क्योंकि हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। द ट्रस्टीज ऑफ द जनरल सर्विस बोर्ड, तो उसके आगे, अंतर समूह के आगे जो होता है वो एक कॉन्फ्रेंस है। हम लोग चुन के डेलीगेट्स को भेजते हैं और डेलीगेट्स भी आगे जाके जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना जो है, वो निर्णयों को जो एक्चुअली उनको फिजिकली जो कंप्लीट करना है, ये काम जो है वो जनरल सर्विस ट्रस्टीज, जनरल सर्विस बोर्ड को दिया जाता है। तो हमारा जो ये ए का जनरल सर्विस बोर्ड है ये भी एक सर्विस कमिटी है। ये हम इन्हें कहा जाता है कि हमारे 12 ट्रेडिशंस का ये कस्टोडियंस है, कि हम में से कोई भी व्यक्ति या समूह अगर ट्रेडिशंस का पालन नहीं कर रहा हो तो उनको समझाना, उनको वापस पूर्व मार्ग पर ले आना, ये हमारे ट्रस्टीज का एक जिम्मेदारी होता है। और वैसे ही वो हमारे पूरा जो पर्स है, यानी जो भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो जाते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस के कस्टोडियंस वो है। वो हमारी पूरा जो आर्थिक जो व्यवहार है ये हमारे ट्रस्टीज के हाथ में होता है। और ये आर्थिक व्यवहार के जरिए हम लोग हमारा ए का जनरल सर्विस ऑफिस जो है
वो मैनेज करते हैं। इसका मतलब खाली ऑफिस मैनेज करना यानी उसका भाड़ा भरना या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना नहीं, बल्कि वहां पर फुल टाइम कार्य देने वाले, हमने स्पेशल वर्कर्स के बारे में लास्ट टाइम सुना, तो ये सभी स्पेशल वर्कर्स जो है, ये सभी को मैनेज करने का और मेंटेन करने का जो कार्य है, ये हमारे गए हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस में से होता है। और इसी के साथ में उनके ऊपर और एक जिम्मेदारी होती है, वो है हमारा जो प्रमुख अखबार जिसे कहा जा सकता है, द ए ग्रे पॉइंट करके जो हमारा मैगजीन चलता है, उसका भी पब्लिश करना, उसका भी एडिटर पब्लिश, ये सब पूरा जो उसकी एक टीम है, ये इसका भी मैनेजमेंट जो है ये जनरल सर्विस ट्रस्टीज के ही हाथ में होता है। So all such representatives are to be guided in the spirit of service. तो ये अलग 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 पदों पर सेवा देने वाले अलग अलग जो लोग हैं, ये सभी का मूलभूत हेतु जो है वो सेवा देना यही है। For true leaders in A are but trusted and experienced servants of the whole. क्योंकि हमारे जो सही मात्रा में जो हमारे जो नेता है, ये अनुभवी और विश्वासु ऐसे हमारे सेवक है। ये सेवक यानी किसी एक समूह के नहीं, बट ए एज अ होल के वो सेवक है। दे डिराइव नो रियल अथॉरिटी फ्रॉम देयर टाइटल्स। इनके जो पोजीशन है, उनको जो टाइटल यानी अधिकार जो उनका जो दिया जाता है, उसमें से उनको ताकत या अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो किसी के ऊपर बॉसिंग नहीं करते, किसी को गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन सबका प्यार और सब में दी हुई इज्जत, यही उनके कार्यक्षम होने का एक मूल मंत्र है या एक दंड है। तो ये ऐसी लंबी ये ट्रेडिशन दी हुई है, ये बताने का प्रयास करती है एक ही वाक्य में, एक ही पैराग्राफ में, कि पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में दो प्रकार के प्रमुख लोग होते हैं। एक, जो लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि हमारा समूह का सेक्रेटरी या आईजीआर या ट्रेजरर, ये इलेक्शन से सिलेक्ट किए जाते हैं। उसी प्रकार से अंतर समूह की कमिटी, ये भी इलेक्ट होती है, डेलीगेट्स इलेक्ट होते हैं, ट्रस्टीज इलेक्ट होते हैं। तो ये सभी जो इलेक्ट होने वाले जो लोग हैं, ये अपने आप को, अपना प्रेम, अपनी सद्भावना और अपना जो अनुभव है, इसके सहारे वो अलग अलग रोल्स पूरा करते हैं। जैसे मैं नया नया था और मेरी अंडरस्टैंडिंग सीमित थी, तो मुझे सिर्फ समूह तक की ही समझ थी, तो एक मीटिंग चलाने इतना ही अधिकार मुझे दिया गया था। वो मीटिंग चलाने के पहले भी मुझे सिर्फ चाय बांटने का अधिकार दिया गया था। तो चाय लाना, उसको कपों में डालना और सबको पिलाना, यही मेरा काम हुआ करता था। धीरे 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 जैसे मेरी सोब्राइटी मजबूत हुई, वैसे मुझे, और थोड़ा बहुत लिटरेचर मैंने पढ़ा, वैसे मीटिंग चलाने का मुझे जिम्मेदारी दिया। वैसे ही समय के साथ में आप, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है, क्योंकि हम एक ही पद के ऊपर ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हम ऑटोमेटिकली अगले पद के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जो दूसरा पद है वहां से सेवा देने वाला आगे निकल जाता है और नया आदमी अभी उस पोजीशन में आता है। तो ऐसे अलग अलग जो ये पद यहां पर दिए गए हैं, ये सभी पदों में ये प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन इसी प्रकार से चलता है। खाली जो टर्म ऑफ सर्विस है वो अलग अलग हो सकती है। कई समूहों में मैं जानता हूं कि एक के सेक्रेटरी को, सिर्फ ग्रुप के सेक्रेटरी को सिर्फ 6 महीने का पद दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिवाइवर समूह में हम लोग 1 साल के लिए सेवा का पद देते हैं। 1 साल के बाद में आप ट्रेजरर बन सकते हो, क्योंकि हम ट्रेजरर बनने के लिए कम से कम हम चाहते हैं कि 2 साल की सोब्राइटी उसकी हो, ताकि कहीं वो बहक नहीं जाए या समूह का पैसा जो है वो उसके पास में सेफ रहे। तो ऐसे अलग अलग पदों के लिए जितनी जिम्मेदारी, उस प्रकार से उसकी सोब्राइटी का एक कुछ नियम दिया जाता है।
जैसे कि अगर आपको आईजीआर बनना है तो आपको 2 साल की सोब्राइटी जरूरी है। जैसे अगर आपको इंटर ग्रुप का चेयरमैन बनना है, पीआई चेयरमैन बनना है, तो कई एरियाज में, कई इंटर ग्रुप में 2 साल का टर्म है, तो कई इंटर ग्रुप में 3 साल की टर्म बताई जाती है। उसी प्रकार से हमारा, अगर आपको डेलीगेट करके सेवा देनी है इंटर ग्रुप से, आप कॉन्फ्रेंस में जब भी जाते हो तो उसके लिए 3 साल की सोब्राइटी की आवश्यकता होती है। ट्रस्टी बनने के लिए आपको 7 साल की सोब्राइटी की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग जो आवश्यकताएं जो दी हुई है, वो जैसे आप कार्यक्रम में पुराने होते जाते हो, आपका आपका अनुभव और आप सयाने बनते जाते हो, आपको अलग अलग प्रकार के समस्याओं को सामने जाने का जब भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आप आगे आगे जाते हो। लेकिन हर सेवा कुछ ही समय देकर आप आगे चले जाते हो और नए नए लोगों को ये सेवा का अधिकार मिलते रहता है। सिर्फ और जैसे आप अलग अलग लेवल की सेवाओं में जाते हो तो वहां की सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर दी जाती है। यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो इक्वेशन है, तो जितना आपको अधिकार दिया जाता है उतनी ही आपको उसके प्रोपोर्शन में जिम्मेदारी दी जाती है। तो चलो ये ट्रेडिशन को अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये कि जैसे कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वैसा ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी के हाथ में अधिकार किसी को हायर या फायर करने का या किसी मेंबर को एंट्री या एग्जिट कराने का अधिकार हमारे पास में नहीं होता है। कोई भी हमारे यहाँ पर मेंबरशिप के नियम नहीं होते हैं, ना कि नॉन कन्फॉर्मेंस के लिए कोई पनिशमेंट होती है, ना कि नो पावर टू डायरेक्ट और टू गवर्न। यानी कोई भी मुझे ये नहीं बोल रहा है कि पुशान चल ये कर अभी, या तुमने ये जो भी किया है इसका रिपोर्टिंग मुझे करो। इस प्रकार का जो है अधिकार जो है ये हम नहीं करते। चलो आगे पढ़ते हैं। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Pushan. You might think AA's headquarters in New York would be an exception. Surely, the people there would have to have some authority. But long ago, trustees and staff members alike found they could do no more than make suggestions, and very mild ones at that. They even had to coin a couple of sentences which still go into half the letters they write. Of course, you are at perfect liberty to handle this matter any way you please. But the majority experiences in A does seem to suggest. Now, that attitude is far removed from central government, isn't it? We recognize that alcoholics can't be dictated to individually or collectively. At this juncture, we can hear a churchman exclaim, "They are making disobedience a virtue." He is joined by a psychiatrist who says, "Defiant brats. They won't grow up and conform to social usage." The man in the street says, "I don't understand it. They must be nuts." But all these observers have overlooked something unique in Alcoholics Anonymous. Unless each A member follows to the best of his ability our suggested 12 steps to recovery, he almost certainly signs his own death warrant. His drunkenness and dissolution are not penalties inflicted by people in authority. They result from his personal disobedience to spiritual principles. The same stern threat applies to group itself. Unless there is approximately conformity to A's 12 traditions, the group too can deteriorate and die. So, we of A do obey spiritual principles, first because we must, and ultimately because we love the kind of life such obedience brings. Great sufferings and great love are A's disciplinarians. We need no others. It is clear now that we ought never to name boards to govern us, but it is equally clear that we shall always need to authorize workers to serve us. It is the difference between the spirit of vested authority and the spirit of service, two concepts which are sometimes poles apart. It is in this spirit
of service that we elect the AA group's informal rotating committee, the Intergroup Association for the area, and the General Service Conference of Alcoholics Anonymous for AA as a whole. Even our foundation, once an independent board, is today directly accountable to our fellowship. Its trustees are the caretakers and expeditors of our world services. Just as the aim of each A member is personal sobriety, the aim of our services is to bring sobriety within reach of all who want it. If nobody does the group's chores, if the area's telephone rings unanswered, if we do not reply to our mail, then A, as we know, it would stop. Our communication lines with those who need our help would be broken. A has to function, but at the same time, it must avoid those dangers of great wealth, prestige, and entrenched power which necessarily tempt other societies. Though Tradition 9 at first seems to deal with a purely practical matter, in its actual operation, it discloses a society without organization, animated only by the spirit of service, a true fellowship. Thank you. Over to you, Lucky ji. तो बिल तीसरे पैरे से शुरुआत करता हूं मैं। बिल कहता है कि आप सोच सकते हैं कि न्यूयॉर्क में स्थित ए मुख्यालय एक अपवाद होगा। यानी कि हम पहले बात कर रहे थे कि मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन की, हम किसी सामान्य संगठन के रूप में नहीं चलेंगे, जैसे पुष्कर ने अभी समझाया, पूरी हायरार्कियल सिस्टम के साथ। तो आगे कहता है कि ए का मुख्यालय भी एक अपवाद होगा, लेकिन वैसा नहीं है। निश्चय ही वहां के लोगों के पास कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए, लेकिन बहुत पहले ही ट्रस्टी और स्टाफ दोनों ने यह पाया कि वे सुझाव देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और वह भी बहुत हल्के सुझाव। उन्हें तो कुछ वाक्य भी गाढ़ने पड़े, यानी कि इजाद करने पड़े, जो आज भी उनकी लिखी आधी चिट्ठियों में रहते हैं। जैसे कि बेशक आप इस मामले को अपने अनुकूल किसी भी तरह से संभालने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन ए के बहुसंख्यक अनुभव से यह प्रतीत होता है कि ये जो मैं लास्ट की 3 लाइनें पढ़ रहा हूं ना, आपको अक्सर जनरल सर्विस ऑफिस को आप कोई चिट्ठी लिखें ग्रुप की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से किसी भी मामले में राय पूछने के लिए, जानने के लिए, तो शुरुआत ऐसी होती है, बड़ी न्यूट्रल सी शुरुआत होती है। तो अगर यह रवैया है किसी भी केंद्रीकृत सरकार से, कितनी दूर है ना। हम अपने किसी सरकारी दफ्तर में चिट्ठी लिख के उनका जवाब देखें, पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन ये में जवाब आते हैं। तो बिल यहाँ पे बता रहा है कि ए का मुख्यालय भी क्यों ना हो, वहां पे भी उनके काम करने का तरीका इसी प्रकार का है जिस प्रकार का भूषण ने हमें इलाबोरेटली समझाया। हम मानते हैं कि शराबियों को न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से आदेश देकर चलाया जा सकता है। अगले पैरा में लिखता है कि इस मोड़ पर हम एक चर्च के व्यक्ति को यह कहते सुन सकते हैं कि ये लोग तो अवज्ञा यानी कि डिसोबीडियंस को ही गुण बना रहे हैं, यानी कि कोई किसी की मानता ही नहीं, जिसकी जो मर्जी आए वो करे। एक मनोचिकित्सक भी इसमें शामिल होकर कहता है ये अवज्ञाकारी बच्चे हैं, डिफाइंड ब्रैट्स, मतलब ये आज्ञा मानने वाले नहीं है ये लोग। ये बड़े होकर सामाजिक नियमों के अनुसार चलना ही नहीं चाहते। यानी कि लोग हमारे इस अप्रोच, हमारे इस दृष्टिकोण, हमारे इस नजरिए के बारे में ये कहते सुने जा सकते हैं। सड़क पर चलने वाला आम आदमी कहता है मैं इसे समझ नहीं पाता, ये लोग शायद पागल हैं। लेकिन इन सभी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक अनोखी बात को नजरअंदाज कर दिया है, और वो है यदि हर एक सदस्य अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हमारे सुझाए गए 12 कदमों का पालन नहीं करता, तो वह लगभग निश्चित रूप से ही अपनी मृत्यु सजा पर हस्ताक्षर कर देता है। उसकी शराबखोरी और उसके जीवन का टूटना किसी अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया दंड नहीं है, यह उसकी स्वयं की
आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति अवज्ञा का परिणाम है। अब ये जैसा हर व्यक्ति के लिए लगता है, आगे कहता है कि यही कठोर चेतावनी स्वयं समूह पर भी लागू होती है। यदि एक ही 12 परंपराओं का लगभग पालन ना हो तो समूह भी टूट सकता है और समाप्त हो सकता है। इसलिए हम एक ही लोग आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ता है आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन, और अंत इसलिए क्योंकि हम उस जीवन से प्रेम करने लगते हैं जो ऐसे पालन से मिलता है। गहरा दुख और गहरा प्रेम ही ए के अनुशासन करता है। बड़ी गहरी लाइन है। गहरा दुख और गहरा प्रेम ही ए के अनुशासन करता है। हमें और किसी की आवश्यकता ही नहीं है अनुशासन लाने के लिए। अब यह स्पष्ट है कि हमें कभी भी ऐसे बोर्ड नहीं बनाने चाहिए जो हम पर शासन करे, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि हमें हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को अधिकार देना होगा जो हमारी सेवा करे। यह अधिकार के बल पर शासन और सेवा की भावना के बीच का अंतर है। दो सिद्धांत जो कभी कभी बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसी सेवा भावना से हम समूह की अनौपचारिक रोटेटिंग कमेटी, अस्थायी समिति ऐसी बनाते हैं, क्षेत्र का इंटरग्रुप एसोसिएशन और संपूर्ण ए के लिए जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का चुनाव करते हैं। यहाँ तक कि हमारा फाउंडेशन जो कभी एक स्वतंत्र बोर्ड था, आज सीधे हमारे फेलोशिप के प्रति उत्तरदायी है। उसके ट्रस्टी हमारी वर्ल्ड सर्विसेज यानी कि ए के विश्व की सेवा कार्यों के संरक्षक और संचालक हैं। लास्ट पैरा है, उसमें बिल फिर वापस व्यक्तिगत अनुभव पर आता है। जिस प्रकार हर एक सदस्य का लक्ष्य व्यक्तिगत संयम है, उसी प्रकार हमारी सेवाओं का लक्ष्य यह है कि संयम उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके जो इसे पाना चाहते हैं। सिंगलनेस ऑफ पर्पस अपना ट्रेडिशन। यदि समूह का काम कोई नहीं करेगा, यदि इंटरग्रुप का टेलीफोन बजता ही रह जाएगा, यदि हम अपनी डाक या ईमेल का उत्तर ना दें, तो जैसा ये हम चाहते हैं ना या जानते हैं, वैसा ये रुक जाएगा। उन लोगों से हमारा संपर्क टूट जाएगा जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। ए को कार्य करना ही होगा, लेकिन साथ ही उसे उस धन, प्रतिष्ठा और जमे हुए अधिकार के खतरों से भी बचना होगा जो अन्य समाजों को आसानी से लुभाते हैं। पहली नजर में परंपरा 9 केवल एक व्यवहारिक बात लगती है, लेकिन इसके वास्तविक संचालन में यह प्रकट होता है कि यह एक बिना संगठन वाला समाज है जो केवल सेवा की भावना से चल रहा है, यानी कि एक सच्ची फेलोशिप। तो जैसे भूषण ने बताया था, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है। जैसे भूषण ने बताया था उसी प्रकार से हमारे अनुशासनकर्ता कौन है। अगर मैं दूसरे साइड की बात करूं तो बिल ने कहा, भाई व्यक्ति का टूट जाना और समूह का बिखर जाना। जैसे मैं अपने आप के बचाए रखने के लिए उन 12 तत्वों का पालन करता हूं, उसी प्रकार से एक का समूह भी अपने आप को बचाए रखने के लिए उन तत्वों का पालन करता है। हम वॉलेंटरी सेवा जो भूषण ने जैसे बताई, उसके लिए हम चुने जाते हैं, लेकिन वॉलेंटरी सेवा हर वक्त या उन विशेष कामों में जहां पे 8 घंटे की शिफ्ट करनी पड़े, उनके लिए वॉलेंटरी सेवा तो पॉसिबल नहीं है। ये हमने पहले ट्रेडिशंस में भी देखा, जहां पे हमने स्पेशल वर्कर्स की बात की। तो ऐसे में हम भले ही संगठित न हो, लेकिन हम सेवा समितियां बना सकते हैं, और ऐसी सेवा समिति अपने लिए विशेष सेवक रख सकती है। यानी कि जैसे अभी इंटरग्रुप के मैनेजर्स या अपने जनरल सर्विस ऑफिस में कार्यकर्ता, ये सारे लोगों को, तो ये दोनों चीजों का बैलेंस इसमें बन जाता है। एक, हम अगर संगठन का रूप देते हैं तो संगठन वाले नियम भी आ जाएंगे, और वैसा हो जाएगा तो कोई किसी की सुनने वाला है नहीं।
हम अगर एक दूसरे के प्रति हमारा जो खिंचाव है, हमारा जो बंधन है, वो अनुभव से अध्यात्मा का, लाचारी का बंधन है, और ये हमें सेवा की तरफ प्रेरित करता रहता है। इसके लिए हमको किसी डंडे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तलवार तो हमारे सर पे लटक रही है, हर एक ए मेंबर पे। बिल ये भी इसमें बताना चाह रहा था कि बाकी समाजों से ए का समाज कैसे अलग है, ए के व्यक्ति कैसे अलग है, और इसी के साथ साथ काम रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए ये प्रोविजन भी करना जरूरी था जो ये ट्रेडिशन ने कहा है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि छोटे से एरिया में 3-4 ग्रुप हो जाते हैं, लेकिन वो आपस में मिलकर इंटर ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो वहां पे ग्रोथ नहीं मिलती है। ये ट्रेडिशन हमारी सर्विसेज की ट्रेडिशन कहते हैं हम इसको, ये सेवा की शुरुआत की ट्रेडिशन है, जहां पे हमें समितियों की बात करते हैं। तो ऐसे में कई बार सेवा समितियों का न बनाना भी ट्रेडिशन का उल्लंघन हो जाता है। क्यों? जो नहीं करने वाले काम वो नहीं करने चाहिए, लेकिन करने वाले काम भी तो करने चाहिए ना। अगर करने वाले काम हम नहीं करेंगे तो वो नहीं किया जैसे हो जाएगा। तो इसके लिए हम सभी जब आपस में अपने एरियाज में बात करते हैं तो इन समितियों की स्थापना करनी चाहिए। डरे हुए तो हम सभी रहते हैं, आदमी कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ऑफिस कहाँ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं बातों पे एक ही ग्रोथ निर्भर करती है। किसी ने बिल को पूछा था कि एक ही ग्रोथ के लिए क्या किया जाए भाई, क्या क्या आवश्यक है, सबसे जरूरी क्या है? तो बिल ने उसको जवाब दिया था 2 चीजें। एक, साउंड सर्विस स्ट्रक्चर, एक सुव्यवस्थित सेवा रचना, और दूसरा 7 ट्रेडिशन, यानी कि पैसा। पैसे का होना उन सेवा समितियों को चलाएगा, सेवा समितियों का चलना उन सभी जगह पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्य को हमेशा चालू रखेगा। और अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्य चालू रहा तो हमारे पास नए नए सभासद आते रहेंगे। तो एक ही ग्रोथ का ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यहाँ से शुरू होता है। इनफैक्ट मैं छोटा सा अनुभव अपना, श्रीलंका जब मैं ट्रस्टी था तभी मैं गया था, तो वहां पे लगभग 25 साल हो गए थे, को 7-8 ग्रुप थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई एक सेवा समिति बनाई ही नहीं थी, इंटर ग्रुप भी नहीं बनाया था। और उनका जो लिटरेचर प्रिंटिंग था वो कोई श्रीलंकन था, अमेरिका में जाके सोबर हो गया तो उसने अपना खर्चा किया, बिग बिग को ट्रांसलेट किया सिनाला में, और एक 200-400 कॉपी उसने प्रिंट करके भेज दिया इधर किसी ओल्ड टाइमर को, और वही कॉपीज घूम रही है। इनके पास तमिल का जो लिटरेचर वो इंडिया से आ जाता था, लेकिन वो सिन्हाला या बाकी भाषाओं में इनके पास लिटरेचर नहीं। तो ये सारा देख करके तभी मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैंने उनको सुझाव दिया कि आपको संगठित होना पड़ेगा, भले थोड़े हैं तो क्या हो गया, हम नहीं क्या अपने आप को बचाने के लिए दूसरे शराबी को ढूंढने लग पड़ते हैं। अगर मेरा तबादला कहीं हो जाए ऐसे गांव में जहां पे आसपास 100 किलोमीटर ये नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है, दूसरा शराबी ढूंढ भाई, उसके साथ काम करना चालू कर, तो तेरी सोबरिटी बरकरार रहेगी। तो मैं ढूंढता हूं ना, प्रयत्न करता हूं, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट सबके पास जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जरूरी है मुझे बचने के लिए। उसी प्रकार से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ के लिए और समूहों को बचने के लिए यह जरूरी है कि सेवा कार्य चले। और इन सेवा कार्यों का तो अभी अगले हमारे पास 90 साल का अनुभव हो गया है अभी। तो आज भी दुनिया में या भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंची भी नहीं है। जगह इन द सेंस मैं कहूंगा कि स्टेट्स हैं, पूरे पूरे राज्य है जहां पे इक्का दुक्का लोनर मेंबर या 5 मेंबर या एक आधा ग्रुप कभी चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आज जब हम सब इस ट्रेडिशन को सुन रहे हैं तो हमें उन जिम्मेदारियों का बोध होता है, एहसास होता है, ये भी समझ में आता है कि हम नए सदस्यों को ये भी समझ में आता है कि हम बाकी संगठनों से अलग कैसे हैं, हम संगठित क्यों नहीं होना चाहते हैं, उसके खतरे क्या है, और पूरी तरह संगठित न होने के बावजूद भी हम कैसे 180 देशों में पहुंच गए, कैसे हमने आज तक अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है, कैसे आज भी हमारा मैसेज फिल्टर नहीं हुआ, डाइल्यूट नहीं हुआ है, हमारा ध्येय नहीं बदला है, क्योंकि हम उस सेवा की भावना से आगे आते हैं।
हम बहिष्कार के डर से आगे नहीं आते हैं या निकाले जाने के डर से सेवा नहीं करते हैं। हम प्यार से करते हैं, हम प्रेम करते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से। तो जब मैंने वो श्रीलंकन को बताया तो उन्होंने तैयारी की, कुछ आपस में मिले, दूर दूर थे ग्रुप्स, लेकिन फिर भी एक इंटर ग्रुप की स्थापना, बाद में और भी कुछ ऐसे मेंबर गए इंडिया से, उन्होंने मदद कराई, उनको कहा कि भाई कुछ पैम्पलेट्स ट्रांसलेट करो, शुरुआत करो, मिलना चालू करो। तो ये अनुभवों का आदान प्रदान ये बताता है हमें इस ट्रेडिशन में से कि हमें एक ही ग्रोथ के लिए या इवन स्टेबिलिटी के लिए हमें ये सारी सेवा समितियां बनानी पड़ेंगी। अब इसमें एक लास्ट की लाइन है भूषण, अब जब बोलने के बाद बताएं, रिस्पॉन्सिबल टू दोज दे सर्व। इसका कई लोगों को बड़ा समझ में नहीं आता है कि हाउ। तो आप अब जब आपके पार्ट कहेंगे तो उसमें इसको भी कवर करिएगा। ओवर टू यू भूषण। तो हमने देखा हुआ है कि ट्रेडिशन 2 जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो टाइम पे हमने जिक्र देखा था कि एल्डर स्टेट्समैन और ब्लीडिंग डिकॉन्स, वहां पर बिल डब्ल्यू ने बड़ी खूबसूरती के साथ में हमको बताया था कि जब भी एक नए गांव में एक समूह तैयार होता है तो एक आधा मेंबर जो पहले वहां पर आया हुआ है उसी ने सब काम किया हुआ है, डॉक्टरों को बात की हुई है, घर घर जाके मैसेज दिया हुआ है, और फिर वही वो ग्रुप का कर्ता मेंबर बन जाता है, सभी का स्पॉन्सर बन जाता है, और वो अपनी अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन धीरे 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 सभी समूह के बाकी सदस्य है उनको समझ में आता है कि ये ऐसे नहीं चलती है, ऑटोक्रेटिक यानी एक बॉस और बाकी सब चेले, इस प्रकार से नहीं चलती है, बल्कि हर एक व्यक्ति का एक मत होता है। और समूह की बिजनेस मीटिंग में वो नया हो या पुराना हो, हर एक का एक ही मत होता है। और धीरे 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 वो एक जो ताकतवर इंसान है वो बाजू में हो जाता है और इलेक्टेड लीडरशिप वहां पर आती है। तो हमने वहीं पर ये संकल्पना देखी थी कि जो नेचुरल लीडर्स होते हैं और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके अंदर अंदर दोनों के बीच का अंतर हमने वहां पर देखा है। अभी उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आते हैं। जो नेचुरल लीडर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ करके मैराथन 12 स्टेप वर्क करेंगे, नए ग्रुप बनाएंगे या अंतर समूह में जाके सेवा करेंगे, ये अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, ये हर चीज जो है वो ए के लिए उपलब्ध करा के देंगे, और ये पॉपुलर भी होते हैं। और जो कि ये खुद आगे आके खुद सब कुछ करते रहते हैं, तो उनको जो बाकी के फेलोशिप के सदस्य है उनकी इज्जत भी उतना ही करते हैं। वो प्यार और आदर से बनी ऐसी वो इज्जत रहती है। तो आम तौर पर कोई अधिकार तो होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई ओल्ड टाइमर है जो अनुभवी है, उसका अगर कोई मत है या उसने अगर कुछ बताया, तो हमेशा वो सजेशंस के बेसिस पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आप एक समूह की बिजनेस मीटिंग को भी अगर आप देखोगे तो वहां पर एक आध मुद्दा है कि एक आध कार्यक्रम करना है या नहीं। सभी नए जुने सभी लोग अपना मत प्रदर्शन करते हैं, और आखिरी में वो समूह का जो सबसे अनुभवी, सबसे पुराना, सबसे चहेता जो सदस्य है जो बोलता है, उससे वो प्रसंग को काफी आसानी हो जाती है सबको स्वीकार करने में। यानी कि एए में हम अधिकार देते हैं वो प्यार से, और क्या कहते हैं, इज्जत से हम अधिकार देते हैं। तो कोई नया मेंबर को, अगर आज मेरे ग्रुप का अगर कोई नया मेंबर है और उसको मैं बोलूं कि अभी इडियट क्या रहा है, अगर मैं उसको गाली भी दे रहा हूं तो वो मुझे अधिकार देता है, इसीलिए मैं उतना फ्रीडम उसके साथ में ले सकता हूं। मैं उसका भला चाहता हूं, ये जब उसको पूरी तरह से पता है तभी मैं जाके उसके साथ में वो फ्रीडम ले सकता हूं।
तो ये जो तत्व है कि एए में अधिकार जो मिलता है वो प्यार और इज्जत से मिलता है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जैसा नहीं मिलता है। यानी मेरा कोई बॉस नहीं है, लेकिन मैं ही किसी को गुरु मान सकता हूं। मेरा कोई भला बुरा करने का अधिकार मैं किसी को देता नहीं हूं। किसी को मूलभूत अधिकार ये प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं ही किसी को स्पॉन्सर लेता हूं और उसको अधिकार देता हूं कि वो मुझे गाली दे सके या सही दिशा दिखा सके। तो ये जो तरीका है ये एक अलग हट के हमारा तरीका है। और इसी वजह से हमारे समझो अंतर समूह में हमारे कुछ सदस्य गए, हमारे में से ही कुछ समय से सेवा देने के बाद में वो अंतर समूह में गए। वो भले हम में से ही मेंबर है, लेकिन वो जब भी आकर हमें अपील करते कि भाई अपने एरिया में अभी गणपति उत्सव होने जा रहा है, अपने को हर जगह पे बैनर्स लगाने हैं, थोड़ा पैसा निकालो यार। तो हम उनको पैसा देते हैं क्योंकि वो ए का काम का जिम्मेदारी खुद से लिए हुए है और हम अपने पैसे से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनका जो ये ए के प्रति काम करने की जो इच्छा है उसको हम लोग सहयोग करते हैं। दोस्तों, आप दुनिया में कोई भी एनजीओ देखिए, यानी एक उदाहरण के तौर पर आप चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर हमेशा आपको दिखाई देगा कि उनके पास सिर्फ टैलेंट और ट्रेजर होता है। यानी ट्रेजर आता है, कोई ना कोई डोनर्स जो है वो उनको डोनेशन देते हैं, पैसा आता है और वो पैसे से वो टैलेंट को हायर करते हैं और वो टैलेंट जो है वो कार्ड बनाएगा या अपील लेटर्स भेजेगा या अलग अलग जगह पे जहां पर वो संगठनाएं जहां पर बच्चों की मदद करना है वहां पर वो मदद पहुंचाएंगे। तो जो सेवा देने वाले हैं वो भी पैसे लेकर ही सेवा दे रहे। तो वहां पर दो ही क्वेश्चन दिखते हैं, सिर्फ ट्रेजर पहला, पैसा अगर आया, अगर डोनेशंस आई तो ही टैलेंट को हायर किया जा सकता है और वो काम किया जा सकता है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये पूरी तरह से सेल्फ सपोर्टिंग यानी आत्मनिर्भर होने की वजह से हमारे सदस्यों को सिर्फ पैसा देकर काम नहीं चलता है, क्योंकि पैसा देकर हम टैलेंट हायर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको खुद यहां पर समय देना पड़ता है, क्योंकि टैलेंट जो है वो हमारे सिर्फ सर्विसेज हायर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से एए मेंबर्स के जरिए ही किया जाता है और वहां पर सिर्फ हम अपना समय देकर ही कर सकते हैं। तो वहां पर मुझे अपने आप को हाजिर करके ही मैं ये कर सकता हूं। बीएलडब्ल्यू ने, अगर आप सर्विस मैनुअल पढ़ोगे तो इसको हमेशा से कंपेयर किया है कि एखादी ब्यूरोक्रेसी, यानी जैसे हमारे भारत राष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग थोड़ा 1-2 मिनट के लिए उसकी तरफ देखते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या पॉलिटिशियंस है ये सभी इलेक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ से एक नगर सेवक है, ये इलेक्ट होके जाएगा, या जो गृह मंत्री है वो इलेक्ट होके जाएगा, या राज्य मंत्री है या शिक्षा मंत्री है ये इलेक्ट होके जाएगा। अभी ये काफी संभव हो सकता है कि हमारा शिक्षा मंत्री है ये शायद 5वीं पास हो, क्योंकि वो पॉपुलर है, सबको पसंद है और ये बड़े प्यार से हमारी सेवा करेगा ऐसा हमको विश्वास है, या हमारी चहेती पार्टी का है, इसके लिए हम इसको जिता तो दे देंगे। अरे लेकिन 5वीं पास अगर वो मंत्री होगा तो वो हमारी शिक्षा मंत्री करके कैसे काम करेगा, वो सब पॉलिसी और डिसीजन कैसे बनाएगा। तो पॉलिसी और डिसीजन वो नहीं बनाता, पॉलिसी जो है वो पॉलिटिशियंस बनाते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। उसके लिए आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उसके लिए पूरा एक गवर्नमेंट का मशीनरी होता है। तो अलग अलग पार्टी का गवर्नमेंट भले बदलता रहे या मिनिस्टर्स भले बदलते रहे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है
वो इंटेलिजेंट होती है, वो एजुकेटेड होती है, वो अनुभवी होती है, और वो पूरा जो गवर्नमेंट का जो काम है, जो सूत्रबद्धता से, नियमबद्धता से, सही समय पर प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ करने का जो काम है, ये पूरा हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दिया है, लेकिन डिसीजन इंप्लीमेंटेशन जो है ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दिया हुआ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी बिल्कुल इसी प्रकार से ये ट्रेडिशन हमें बताती है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये हमेशा हमारे एए के सदस्य ही करेंगे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही करेंगे। फिर वो ग्रुप हो, अंतर समूह हो, या कॉन्फ्रेंस हो, या ट्रस्टीज हो, ये जो निर्णय है ये हमेशा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही करेंगे। तो पॉलिसी और फाइनेंस, ये सभी निर्णय जो है ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहेंगे। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये सभी जो सर्विस कमिटीज है, ये अलग अलग जगह पे जो हमारी जो कमिटीज जो बनेगी, ये कमिटी जो है यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल टैलेंट होना जरूरी है। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटेड, बेस्ट इफिशिएंट, बेस्ट क्वालिफाइड, ऐसी हमारी टैलेंट होनी चाहिए, तो ही हमारा काम एक प्रोफेशनल कंपनी जैसा होगा। तो अगर मेरा इलेक्टेड जो ट्रस्टी है, हो सकता है वो ट्रस्टी 10वीं पास हो, लेकिन इसका मतलब वो भला बुरा नहीं जानता है, एक ऐसा नहीं है। वो भला एक का किसमें है वो जानता है, और वो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को एम्प्लॉय करेगा। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग जीएसओ न्यूयॉर्क को 2 मिनट के लिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस न्यूयॉर्क जो है, इसके कुछ डायरेक्टर्स जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज एक्टिव डायरेक्टर्स ऑन एएडब्ल्यूएस। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज के ऊपर कुछ डायरेक्टरों को ओवरसी करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो इनको डायरेक्ट अधिकार रहता है, और ये जो अधिकार रहते हैं उनके हाथ के नीचे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें एक जनरल मैनेजर होता है। और वो जो जनरल मैनेजर होता है ये अमेरिका में पास्ट ट्रस्टी होता है, यानी जिसने पूरा सर्विसेज में से गया हुआ है, अनुभव लिया हुआ है, पूरी फेलोशिप को जानता है, फेलोशिप को क्या बर्दाश्त होगा क्या नहीं ये पूरी तरह से जानता है, क्वालिफाइड है और कमिटेड है, उसका प्यार है। ऐसे व्यक्ति को जनरल मैनेजर करके अपॉइंट किया जाता है। और फिर जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, ये सभी डिपार्टमेंट्स को एक स्टाफ मेंबर रहता है, ये सभी जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। वहां पर हायर और फायर हो सकता है, वहां पर टारगेट्स होते हैं, वहां पर इंसेंटिव्स होते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस बेनिफिट्स होते हैं, वहां पर सैलरीज और बोनसेस होते हैं। वो हर चीज जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी चलती है उसी प्रकार से चलती है। और ये सभी जनरल मैनेजर जो है वो अपने रिपोर्ट में ट्रस्टी डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट देते हैं। तो ट्रस्टी डायरेक्टर्स के पास में ओवरसाइट होती है, यानी उनको वो पूरा जो काम है ये काम ठीक तो चल रहा है ना, और अगर वो कोई एक आधा स्टाफ मेंबर ठीक नहीं है तो वहां नया लेना पड़ेगा क्या, इनकी सैलरीज बढ़ानी पड़ेगी क्या, या ऐसे जो फिलोसॉफी क्या बोलते हैं पॉलिसी और फाइनेंस वाले जो निर्णय है वो बोर्ड के मेंबर्स लेते हैं। और जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो पूरा का पूरा 70 लोगों का स्टाफ है वहां पर, ये लोग बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन के जैसा काम करते हैं, किसी भी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जैसा काम करते हैं। और हम इसी वजह से हमें टाइमली लिटरेचर मिलता है, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशंस होते हैं, हर महीने हमारा ग्रे पॉइंट की कॉपीज आती है, या जो भी एक की सुसूत्रता से जो काम चल रहा है वो इनके वजह से होता है। यहां पर ऑर्डर्स चलेगी, यहां पर सजेशंस नहीं होते। जनरल मैनेजर सजेशन नहीं करता है स्टाफ मेंबर को, वो ऑर्डर करता है, और वो स्टाफ मेंबर उसके अंदर का जो सब स्टाफ है उनको ऑर्डर करता है, ताकि वो टाइम लिमिट जो दिया है वो टाइम पे, वो सही समय पर सब डिसीजंस जो है वो इंप्लीमेंट हो सके। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया है ये डेमोक्रेटिक इन थॉट इन एक्शन होती है। यानी कि एए में कहा जाता है कि कोई भी निर्णय लेने की कोई भी घाई नहीं होती है। हर निर्णय जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा होने के बाद, विस्तृत रूप से
उसके सभी पर्यायों को विचार करने के बाद में जो माइनॉरिटी का ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखते हुए, कोई भी नाराज तो नहीं हो रहा है ना, अपनी यूनिटी तो बरकरार हो रही है ना, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पिरिचुअली निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। सो निर्णय लेने की प्रक्रिया ये स्पिरिचुअल है, और इसीलिए ये उन लोगों के हाथ में दी है जहां उनको अधिकार प्राप्त हुआ है, वो प्रेम और आदर के साथ में जिनको अधिकार मिला है उनके हाथ में दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद में निर्णय होने के बाद में इंप्लीमेंटेशन देने के लिए एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में वो निर्णय चला जाता है। तो ये जो है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाली जो मेथोडोलॉजी है, इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है दोस्तों। अगर आप थोड़ा दिलचस्पी रखते हो तो 1946 के आसपास में, जब भी 1900, आप जानते हो कि 1941 में जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल छपने के बाद में 6000 इंक्वायरीज आई, और वो टाइम पे खाली बिल और रूथ मिलके वो खत लिख रहे थे, वो भी मैनुअल टाइपराइटर के ऊपर एक एक टाइप करके सबको रिप्लाई कर रहे थे और कॉपीज बेच रहे थे। तो 41 से 46 तक फाउंडेशन ऑफिस चलाते चलाते जो बिल डब्ल्यू ने अनुभव लिए थे, उसमें से उनको ये बात तो क्लियर पता चल गई थी कि वॉलंटियर वर्कर्स से काम नहीं होगा। वॉलंटियर वर्कर्स थोड़े समय के लिए आएंगे, खीखी खीखी खुखू खुखू करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे। हाँ, उनका उत्साह रहेगा, वो कहाँ, तो दूसरे शराबी को संदेश देने में उनका उत्साह रहेगा, या तो मीटिंग करते समय अपना अनुभव कथन करने में उनका उत्साह रहेगा। लेकिन एए का ये बैक एंड वाला जो काम है, ये करना होगा, तो यहाँ पर स्पेशल वर्कर्स लगेंगे, उनको एहसास हो गया था। और ये स्पेशल वर्कर्स और ये जैसे बढ़ते जाने वाला काम था, तो उन्होंने 1946 में पहली दफा एक आर्टिकल लिखा था कि क्यों हमें कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। ये इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो स्पिरिचुअली हो, लेकिन निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो पूरा एग्जीक्यूटिव स्टाइल से हो। ये इस प्रकार का ये होना चाहिए। ये प्रपोजल उन्होंने जब भी रखा तो सबको लगा था बिल सठिया गया है, बिल पागल हो गया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड बी केप्ट वेरी वेरी सिंपल। ये सब चीजें, ये आदमी लोग और ये अधिकार और ये अलग अलग पोजीशंस और ये अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स और ये स्पिरिचुअल और वो ये सब, ये कैसे होगा? ये इतना सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो ये सब बहक जाएंगे, बेवड़े लोग बहक जाएंगे और ये सब नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यहां तक कि बॉब को भी ये पसंद नहीं था। लेकिन सबसे बड़े जो क्रिटिक थे, जो बिल के खिलाफ थे, वो थे हमारे वो टाइम के ट्रस्टी चेयरमैन, उनका नाम था बर्नर्ड स्मिथ। और बर्नर्ड स्मिथ, ये बिल डब्ल्यू का आग्रह था कि नहीं नहीं ये करना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके ट्रस्टीज और फेलोशिप में अनबन होगी, और अनबन होगी तो ट्रस्टीज को पता ही नहीं रहेगा, उनको एम्पैथी नहीं रहेगी फेलोशिप के प्रति, और फेलोशिप को पता नहीं होगा हमारे ट्रस्टीज है कौन और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो अगर सही ढंग से होना है तो ये जो स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल का जो ब्लेंड है, एग्जीक्यूटिव एंड स्पिरिचुअल का ब्लेंड है, ये सही ढंग से होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब निर्णय लेने वाले बेवड़े हो और इम्प्लीमेंट करने वाले जो है वो नहीं बेवड़े होंगे तो चलेगा, ऐसा हो तो ही ये काम हो सकता है। तो उन्होंने ये बड़ी खूबसूरती के साथ में बार बार एक दो दफा तो बर्नार्ड स्मिथ ने रेजिग्नेशन भी दिया था, लेकिन उन्होंने पटा पटा के उनको वापस लेने को लगाया। डॉक्टर बॉब को भी जब भी आपने देखा है बिल को, उन्होंने बोला था कीप इट सिंपल, वो कीप इट सिंपल इस मामले में उन्होंने यूज किया था। लेकिन अंत में उन्होंने बॉब को भी पटाया, और बॉब ने उनको 1950 के पहले उनको अंतिम जो 1949 में उनको अधिकार दे दिया कि ठीक है आप जो समझते हो वो करिए। और बर्नार्ड स्मिथ जो खुद एक एडवोकेट थे, उन्होंने ये जब ये बात को पूरा विजुअलाइज किया और उनको ये समझ में आया, वो तो क्लास ए ट्रस्टी थे, वो तो शराबी भी नहीं थे, तो बिल ने और बर्न स्मिथ ये दोनों ने बैठ के ये एक मास्टरपीस, अगर आप आगे जाके हम लोग कॉन्फ्रेंस चार्टर नाम का जो डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी करेंगे, जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे वो टाइम पे हम लोग वहां पर देखेंगे। तो उन्होंने ये एक मास्टरपीस ऐसा बनाया कि बेवड़ों को क्या अच्छा लगता है
तो सेवा देने को अच्छा लगता है, शराबी के साथ काम करने को अच्छा लगता है, और उनको धीरे 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 जैसे साल जाएंगे वैसे उनको बड़ी 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 डिसीजन मेकिंग की क्षमता हम लोग देते जाएंगे। और शराबी जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार और एक दूसरे की अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति प्रेम और पीड़ित शराबी के प्रति उनकी आत्मीयता, यही भाव से प्रेरित होकर वो स्पिरिचुअल निर्णय लेते जाएंगे। और ये स्पिरिचुअल निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा, ढेर सारा ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, ढेर सारे एग्जीक्यूटिव लगेंगे। ये सभी जो है उनका मैनेजमेंट जो है ये ट्रस्टीज करेंगे। सो ट्रस्टीज वर इंटरेस्टेड, ट्रस्टीज के हाथ में द पर्स यानी जिसे कहते हैं कि पॉलिसी और फाइनेंस जो है वो ट्रस्टीज के हाथ में दिया था, और एग्जीक्यूशन जो है वो जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में दिया था। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि सही मायने में एक अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी लकी भाई छेड़ रहे थे कि जो अलग अलग सेवा के स्तर है और वो स्तर पे सेवा देने वाला जो जो एक एक सदस्य है, तो उसका जो रोल है, अभी फॉर एग्जांपल मैं पीआई चेयरमैन बन गया ठाणे अंतर समूह का। अब मेरा रोल क्या है, तो ठाणे के सभी समूहों को साथ में लेकर उनके आईजीआर्स का सम्मति लेकर मिले हुए जो पैसे है, जो पास हुआ बजट है, उसको मध्य रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एए का संदेश पहुंचाना, ये मेरा काम है। अब ये काम करने के लिए मैं एक पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी बनाऊंगा, उसमें हर समूह से सदस्य बुलाऊंगा, और उनमें से भी मैं उनको बोलूंगा भाई 2-3 लोग आप सिनेमा स्लाइड्स के पीछे लगो, 2 लोग है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज के पीछे पड़ो, 2 लोग है वो टीएमटी के बसेस में जाके स्टिकर का लगाने का काम के पीछे लगो, 2 लोग है जो हर एक जो डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट है हमारे एरिया में उनके साथ में मिलने के लिए लगो। ऐसे मैंने कामों का विभाजन करके सबको दे दिया और मैं सबके साथ में जाकर ये काम करने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा रोल है, यानी इसको बोला जाता है कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो मैं और मेरे साथ में दिए गए कमिटी मेंबर्स जो आईजीआरस है या ग्रुप में से आए हुए मेंबर है, ये हमारी कॉम्पोजिशन है। स्कोप क्या है, तो पीआई वर्क करना है ठाणे एरिया में। अथॉरिटी क्या है, तो मेरे को समूहों के ऊपर अथॉरिटी कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए लगने वाले जो पत्रक है या थोड़ा बहुत जाने आने का खर्चा है, वो खर्चा करने की मुझे अथॉरिटी है। तो ठाणे समूह ने मुझे 5,000 रुपए तक के खर्च करने के लिए मुझे अथॉरिटी दी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो भाई पूरे आईजीआर सभी समूहों ने जो मांगा हुआ है कि ठाणे एरिया के हर एक जो इच्छुक है, शराबी है, उसको संदेशा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इसके लिए ठाणे एरिया के सभी रिहैब, सभी साइकियाट्रिस्ट, सभी डॉक्टर, सभी सिनेमा गोइंग पब्लिक, सभी इंस्टाग्राम यूजर्स, यह सब तक एक का संदेशा जाना चाहिए। ये ये मुझे दिया हुआ जो टास्क था, ये मुझे कंप्लीट करना है। तो कॉम्पोजिशन, स्कोप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 में ये डॉक्यूमेंट, ये जो है इसमें मेरा जो रोल है ये पूरी तरह से बंधा हुआ है। अभी सडनली समझो रिवाइवर ग्रुप में से एक लकी खड़ा हो गया और वो बोलेगा तुम हमारा ट्रस्टेड सर्वेंट है, पहले हमको ये बताओ कि तुम जुपिटर हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए। तो दोस्तों, मैं लकी को आंसरेबल हूं क्या? मैं लकी का सर्वेंट हूं क्या? नहीं। तो मैं ट्रस्टेड सर्वेंट हूं, लेकिन मैं किसका? ऑफ एए एज अ होल, यानी एए की सेवा देने के लिए मैंने अपनी उपलब्धि दी है। मैं हर आयरे गहरे के उल्टे सुल्टे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बंधा हुआ नहीं हूं। मैं उनको बोलूंगा कि लकी भाई, आपको जो भी सवाल पूछना है आपके ग्रुप के आईजीआर के जरिए आप इंटर ग्रुप में पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? तो मेरी जो जिम्मेदारी है, वो जो कमिटी ने मुझे अपॉइंट किया है उस कमिटी को जवाब देने इतनी ही है।
बाकी हर अरे गहरे अथो नहरे को मेरे को देने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं पीआई चेयरमैन हूं इंटर ग्रुप का और मैं लेटर लिखता हूं पीआई चेयरमैन जीएसओ इंडिया को कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर पैसा खर्चा कर रहे हो, ठाणे नहीं मैम करने रहे हो, तुम्हारे को कुछ आता है कि नहीं? तो ये मेरे को उत्तर देने के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं। भले वो भी पीआई चेयरमैन है, भले मैं भी पीआई चेयरमैन हूं, भले हम लोग अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है सिर्फ उसके ट्रस्टीज कमेटी को या उसके डेलीगेट्स कमेटी को जवाब देने के लिए। मैं जिम्मेदार हूं सिर्फ मेरी आईजीआर कमेटी को जवाब देने के लिए। सो जहां पर मेरी ये पूरी जो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जो अपसाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी सबसे ऊपर समूह जो निर्णय लेंगे वो समूह के निर्णयों को इंप्लीमेंट करने का काम अंतर समूह का, और अंतर समूह के द्वारा भेजे गए जो डेलीगेट्स है वो डेलीगेट्स जो निर्णय लेंगे उनको इंप्लीमेंट करने का काम है जनरल सर्विस बोर्ड का। यानी सबसे ऊपर हमारे हायरार्की में आते हैं समूह और सबसे नीचे हमारे हायरार्की में आता है वो हमारा जनरल सर्विस बोर्ड। तो ये हमारा अपसाइड डाउन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो फ्लो ऑफ डिसीजंस जिसको कहते हैं, डिसीजंस का फ्लो है वो अपसाइड डाउन आता है, यानी समूह से लेकर वो जनरल सर्विस बोर्ड तक आता है, जो कि बाकी दुनिया में जनरल मैनेजर जो होता है वो निर्णय लेता है और वो उसके छोटे से छोटे सेल्समैन तक वो जाता है, यानी पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। और हमारा जो है वो इनवर्स पिरामिड, यानी पिरामिड को उल्टा करने के बाद में एक फनेल जैसा जो शेप होता है, ये हमारा होता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरा का पूरा इनवर्स पिरामिड में होता है, लेकिन आंसरेबिलिटी इंप्लीमेंटेशन जो है वो पिरामिड के हर लेवल पर वही के आंसरेबल टू दोज दे सर्व, ये होता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ओवर टू यू चंद। एडिशन 9 तो खत्म हो गया प्रश्न। खत्म हो गया? ओके, आज सॉरी मैं भूल गया। सो द लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक हियर is the difference between the spiritual side and the business side. तो जो spiritual side, let us say कि ऑल ओवर इंडिया में से जो डेलीगेट्स आते हैं कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सबने एक निर्णय ले लिया कि चलो हम लोग एक पैम्पलेट बनाते हैं मछुआरों के लिए, और ये पैम्पलेट की 1,000 कॉपीज बनानी चाहिए सभी भाषाओं में। भारत में 17 भाषाएं हैं, तो 17,000 पैम्पलेट्स बना के दिए जाए। अब ये जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो एक भाव के साथ में यहां पर आए हैं कि भाई इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे मछुआरे हैं और मछुआरों में पीने का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो उन तक ये संदेशा पहुंचना चाहिए। बड़ा अच्छा विचार लेकर आए और उसके लिए हमने एक पैम्पलेट बनाना चाहिए जो मछुआरों में बांटा जा सके। ये निर्णय आ गया कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस कमेटी ने बोला अरे यार बहुत अच्छा निर्णय है ये हमने बहुत पहले करना चाहिए था, सबने पास कर दिया। और उन्होंने ये निर्णय अभी जनरल सर्विस बोर्ड के सामने दे दिया कि भाई इसको बनाओ और सब भाषा में छापो। अब आता है ये स्पिरिचुअली तो बहुत स्ट्रांग निर्णय है, साउंड निर्णय है, जरूरी है, लेकिन अभी आते हैं बिजनेस साइड पे। अभी ट्रस्टीज ये निर्णय को एनालाइज करेंगे और वो बोलेंगे यार निर्णय तो अच्छा है, सभी मछुआरों के लिए करना जरूरी भी है, लेकिन भारत में आधी से ज्यादा भाषाओं के जो लोग हैं उनको तो समुद्र किनारा है ही नहीं। समुद्र किनारा तो है सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा, इतने ही लोगों को है। उड़ीसा ज्यादा से ज्यादा, इतने ही लोगों को समुद्र किनारा है। तो 6 या 7 भाषा में ही बनना चाहिए, पूरे 17 भाषा में बनाने का क्या कारण? तो पहला निर्णय उन्होंने ले लिया कि भाई 17 भाषा के बदले
ये निर्णय बनाया जाए 7 से 8 भाषाओं में, जहां पर समुद्र किनारा है उन्हीं भाषाओं में बनाया जा सकता है। फिर दूसरा एनालिसिस करते हैं, वो तो सब ठीक है, लेकिन कितने मछुआरे इतने पढ़े लिखे हैं कि जो पढ़ सकते हैं पैम्पलेट को। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि शायद मछुआरों में एजुकेशन लेवल ज्यादा नहीं होगा और शायद वो पैम्पलेट पढ़ने वाले नहीं होंगे। तो अगर हम लोग हजार हजार पैम्पलेट छापेंगे तो क्या ये इनके काम का है? कि बेटर होगा कि हम लोग उनकी वो भाषाओं में जो उनकी जो शेयरिंग्स है, वो शेयरिंग्स को हम लोग ऑडियो क्लिप्स बना के सर्कुलेट करें। नहीं नहीं, लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन आया है कि पैम्पलेट छापना चाहिए, तो पैम्पलेट छापते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, हजार हजार छापने के बदले हम लोग 500 छापते हैं। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब 500 तो छाप सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग ने एरियाज की बात की, वो हर जगह पर पैम्पलेट बांटने के लिए एक एक ग्रुप्स है क्या मौजूद? तो भाई महाराष्ट्र में मालवण बिलवण एरिया, अलीबाग वगैरह एरिया में ग्रुप्स है, कम है लेकिन है। गोवा में बहुत सारे ग्रुप्स है, केरला में बहुत सारे ग्रुप्स है, तमिलनाडु में बहुत सारे ग्रुप्स है, आंध्रा में बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन उड़ीसा में ग्रुप्स नहीं है। तो फिर उड़ीसा में उड़िया पैम्पलेट छापना जरूरी है क्या? तो चलो ठीक है, जहां सबसे ज्यादा बस्ती है पहले उसे करते हैं। तो फिर कोंकणी में करते हैं, जहां पर महाराष्ट्र भी चल जाएगा और गोवा भी चल जाएगा और थोड़ा बहुत कारवार एरिया यानी कर्नाटका का एरिया भी चल जाएगा। तो 3 भाषाओं का एक पैम्पलेट बना दिया तो तीनों राज्यों का काम हो सकता है। इस प्रकार का जो एनालिसिस है, इसे बोलते हैं द बिजनेस साइड। तो स्पिरिचुअल साइड ने फाइनेंशियल बर्डन के बारे में नहीं सोचा, स्पिरिचुअल साइड ने खाली जरूरत जो है उसके बारे में सोचा। लेकिन जो ट्रस्टीज है उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और फाइनेंशियल बर्डन जो है, इसके बारे में सोचकर एक बैलेंस्ड निर्णय लेते हैं। और ये निर्णय दोबारा जो डेलीगेट्स कमेटी है उनको ये समझाते कि भाई आपने प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन ये पॉइंट्स लेकर हमने डिसाइड किया है कि फिलहाल हम लोग 5 भाषाओं में 500 क्वांटिटी बनाते। तो कहां 17,000 क्वांटिटी बनने जा रही थी और कहां अभी 2,500 क्वांटिटी बनी, और वो अगर फट से चली गई तो और 500 बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक दफा वो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर हो गया फिर तो वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि आने वाला जो पैसा है, आने वाले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को मध्य रखते हुए जो आए हुए जो आध्यात्मिक जो सुझाव है, वो सुझावों को भी पूरा करना है और वो भी अपने अवेलेबल पर्स के साथ में करना है। ये जो टेलरिंग का जो काम है, यानी कटिंग फिटिंग का जो, जैसे अपने चादर देख के पैर फैलाने वाला जो काम है, ये काम हमारे ट्रस्टीज का रहता है। अभी हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में परहैप्स 1,00,000 डॉक्टर्स है और शायद 10,000 साइकेट्रिस्ट है और शायद 10,000 रिहैब सेंटर्स है, और इन सबको हर महीने कुछ ना कुछ एक ही तरफ से लिटरेचर जाना चाहिए, सब जाना चाहिए, ये हम सब समझते हैं। लेकिन ये करने का खर्चा दोस्तों करोड़ों में होगा। तो अगर हमारी, जैसे अभी लकी भाई ने कहा कि सर्विस स्ट्रक्चर तो है हमारे पास में, स्ट्रक्चर है हमारे पास, जीएसओ ऑफिस है, वहां पर काम करने वाले स्टाफ है, हमारे पास डेलीगेट्स है, वो ये भी बोलेंगे कि यार इनको सबको महीने का महीने भेजो। लेकिन 7th ट्रेडिशन का सपोर्ट अगर नहीं होगा, अगर सिर्फ 6% समूह अगर जीएसओ को कंट्रीब्यूट कर रहे और जीएसओ का सब मिला मुला के जो बजट है, वो जीएसओ का भाड़ा और पगार वो बांटने के बाद में थोड़ा बहुत लिटरेचर वगैरह छापने के बाद में कुछ ज्यादा पैसा बचता नहीं होगा। तो ये सभी आइडियाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये अटक जाता है। अच्छा, इसका आम सदस्य को पता भी नहीं होता। अगर जीएसओ इंडिया के पास में पैसा नहीं है या उनके सामने के क्या उद्दिष्ट है और वो उद्दिष्ट पूरे करने के लिए कहां वो कम पड़ रहे हैं, ये एक आम मेंबर तक पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए जो हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो एग्जीक्यूटिव साइड जो है,
जो हमारी इतने सालों के बाद में भी जो हमारी कमजोर है, आज भी हमारे जीएसओ इंडिया में एक दो ही लोग काम करते हैं, और वो भी एकदम सिंपल स्टाफ, यानी जो कुरियर वुरियर करना या अकाउंट्स लिखना, इतना ही बेसिक काम के लिए ही हमारे पास में स्टाफ है। लेकिन हमारे देश को देखते, अल्कोहलिज्म का साइज देखते हुए, हमें जो चाहिए वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशन 9 चाहिए। क्योंकि अगर हमारे ट्रस्टीज वो सही मायने में ये सपना देखे और हमारे सबके सामने अगर एक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करे, और हमारे डेलीगेट्स अगर आकर हमारे अंतर समूह को समझा सके, और हमारे आईजीआर आके अगर हम हर एक ग्रुप में अगर ये विजन हमारे को सामने समझा सके कि भाई एए को 2035 में 100 साल होने वाले हैं, अभी 2025 में है, हम लोग 26 चालू हो गए, 10 साल बचे हुए हैं, और हमको करोड़ों की मेंबरशिप चाहिए, तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल डिसीजन मेकिंग तो होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास में एकदम स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सस्टेन करने के लिए हमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी करनी चाहिए। ये पूरा का पूरा गणित जब ये बैठेगा ना दोस्तों, तभी ये हमारी फेलोशिप है बड़ा जबरदस्त काम कर पाएगी। तो चलो, अभी 10:26 हो गए, मैं अपने आप को यही रोकता हूं, और अगर किसी को कोई सवाल हो इस विषय में तो हम लोग यहाँ पर वो सवाल को ले सकते हैं। थैंक यू भूषण। दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नीलेश, पूछे नीलेश, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, शराबी नीलेश। मेरा ये सवाल था, अभी समूह में जो नया मेंबर आया है, मतलब नया मेंबर 2-3 लोग आए हैं, और समूह का मेंबरशिप है 20-25 लोग, और एक ही मेंबर 15-20 मतलब 20-25 मिनट खा जा रहा है, और 2-3 शेयरिंग हो रही है। तो मतलब सबको मिलना चाहिए ना, 10 मिनट 5 मिनट, तभी तो समझ में आएगा उसको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। दूसरों की शेयरिंग सुन के 2-3 ही मेंबर 1.5 घंटा खा जा रहा है, तो इसलिए मतलब समझ गए होंगे आप। जी जी। सो अगर ऐसा सवाल होता है ना, कभी भी ग्रुप के फंक्शनिंग का कोई भी इश्यू होगा, तो ये समूह की बिजनेस मीटिंग में लिया जाता है। ये क्या होता है, जब भी सेक्रेटरी वो कुर्सी में बैठा रहता है, वो किसी को रोकना नहीं चाहता है, और कोई मेंबर अगर बहुत दिनों के बाद में आया और बहुत ज्यादा बात कर रहा है, तो उसे रोकना भी ठीक नहीं लगता है। कभी कभी बड़े भावुकता के साथ में वो शेयरिंग करता रहता है। लेकिन अगर समूह की बिजनेस मीटिंग में एक बात हुई होगी कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो 5 मिनट के ऊपर शेयर नहीं करेगा, तो सेक्रेटरी को अधिकार दिया जाता है 5 मिनट के बाद में वो बेल बजा सकता है, टिंग टिंग कर सकता है, जिससे सबको वो मीटिंग की शुरुआत में ही बता सकता है कि इस समूह का निर्णय हुआ है कि हर एक शेयर जो है वो 5 मिनट का होगा। अंतिम सिर्फ एक 20 मिनट का शेयर जो है वो टॉपिक शेयर होगा, जिसके लिए स्पीकर हमने बुलाया है, या स्पीकर मीटिंग होगी, या कोई सीनियर मेंबर है जो बात करने वाला है। बाकी सब जो शेयरिंग है वो 5 मिनट के होंगे। इस प्रकार का निर्णय जो है वो आपके समूह के बिजनेस मीटिंग में किया जाता है। तो अगले टाइम आपके समूह के बिजनेस मीटिंग में जरूर हाजिर रहिएगा, और ये मुद्दा उठाइएगा, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निर्णय आएगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राहुल, हाँ दोस्तों, राहुल शराबी आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया है। तो मैंने ये शेयरिंग पे से एक निष्कर्ष निकला है मेरे दिमाग में कि भाई हमको तो सबसे पहले दूसरे शराबी को अवेयरनेस देने के पहले क्या हम ऐसा कोई बंदा हायर नहीं कर सकते कि जो वेल एजुकेटेड और सबको, और पहले वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जाके वो एक के जो तत्व जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी लकी भाई है, पुशन भाई है, इनको समय तो है नहीं, इनकी क्षमता के अनुसार ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन जो जहां तक हमारी ये जो अवेयरनेस पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं रही है ना, लोगों के अंदर ही अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि नया शराबी आता है और तो उसको आध्यात्मिकता के नाम पे वो खुद का ही विकास करने लग जाता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है फेलोशिप में, और ऐसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिस गाइड होती है, पूरा कार्यक्रम नहीं ले सकता है वो आदमी। तो उसके लिए क्या हम पेड एम्प्लॉय
हमारे फेलोशिप में जैसा कोई जर्नल सर्विस ऑफिस है वो भी रख सकेगा, या फिर हमारा जीएसओ यानी हमारा जो इंटर ग्रुप है वो भी रखेगा कि हर हर महीने में एक ग्रुप में जाके, वो जैसा बिजनेस के ऊपर कम बातें होती कि भाई बिजनेस के ऊपर ही आदमी आके 30 मिनट शेयरिंग करेगा और हमको स्ट्रक्चर समझाएगा, और उसके लिए उसको सिर्फ वही काम के लिए वो उसको रखा जाए पेड एम्प्लॉय तरीके, ऐसा हो सकता? तो अगर आपने देखा होगा तो कई सारे देशों में जहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं थी, उन देशों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरुआत करने का जो काम है वो स्पेशल वर्कर्स ने ही किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इंडिया में हमको पता नहीं था कि कॉन्फ्रेंस कैसे चलाते हैं, तो हमने जीएसओ न्यूयॉर्क को लिखा और वहां से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, वहां से आया जनरल मैनेजर और इंटरनेशनल डेस्क की जो इंचार्ज थी, स्टाफ मेंबर थी, ये ग्रेग मूथ और इवा सांचेज, वो आए थे। भले दोनों ए मेंबर थे, लेकिन आए थे वो स्पेशल वर्कर के हैसियत से आए थे, ताकि वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एए का जो अभी तक जो हमारा कोई पहचान नहीं था वो पहचान करा सके, और किस प्रकार से एए का स्पीड से काम होता है ये हमको समझा सके। तो ये ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसओ में एक पोजीशन ऐसी क्रिएट की जाए कि हर एक सर्विस स्ट्रक्चर सही कैसे चलता है और कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग अंतर समूह में जाकर बात करके उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक स्टाफ पोजीशन क्रिएट करना चाहे तो ये डेफिनेटली क्रिएट की जा सकती है। ये अगर डेलीगेट्स हमारे मांगेंगे कि ट्रस्टीज को कि भाई एक स्टाफ मेंबर ऐसा करो कि ये पूरा फंक्शनिंग हमको समझा दे, तो ये हो सकता है। बट अगर ये होगा नहीं होगा, कब होगा ये स्थिति होगी, तो तब तक के लिए आप जरूर अपने अपने एरियाज में ट्रेडिशन वर्कशॉप्स रख सकते हैं। ये ट्रेडिशंस को सही ढंग से समझने के लिए आप ट्रेडिशन वर्कशॉप्स रख सकते हैं, और जो लोग ट्रेडिशंस पे बात करते हैं, जो लोगों को इस बारे में जानकारी है, इन लोगों को बुला सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशन वर्कशॉप्स में इस प्रकार का जो नॉलेज है वो इजीली शेयर किया जा सकता है। और ऊपर से अभी हम लोग जो ये मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स हो रही है, ऐसे ही ये संक्षिप्त रूप में ये रिकॉर्डिंग्स के छोटे छोटे टुकड़े करके हम मेंबर्स को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मैसेज फैलाने के, नॉलेज फैलाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर इच्छा है तो मार्ग जरूर निकल आएंगे। थैंक यू भूषण। दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे फ्राइडे को, और ट्रेडिशन 10 पे चर्चा करेंगे।